plus 1 are these numbers. Their product will be sum of these three numbers. What is the sum of these three numbers? X minus 1 plus x plus x plus 1. It is the sum of these three numbers. The sum is this. This is the sum of these three numbers. X minus 1, x into x plus 1 is equals to x minus 1 plus x plus 1. Addition. Plus 1 and minus 1 will be cancelled. So RHS will be 3x. The LHS will contain x minus 1 into bracket x into x plus 1. Now, x is given positive. So x is not 0. So x will be cancelled from both the side. X will be cancelled. So x minus 1 into x plus 1. X minus 1 into x plus 1 will be 3. So as x minus 1 into x plus 1 is 3, x square minus 1 will be 3. X square minus 1 is 3. So x square will be 4. So as x is positive, so x will be 2. So the x is 2. As x is 2, the middle number is 2. The next number will be 3 and the previous number will be 1. So numbers are 1, 2, 3. And it is asked to find sum of their squares. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9. Their addition is 14. So our answer is 14. Our answer is 14. So we got the answer as a 14. Now next question is, this is from trigonometry. Though we have not started anything on trigonometry, let me check your knowledge of trigonometry. So here this is a right angle triangle. And the angles are given. Say this angle is A. This angle is say B. See the names of angle. Generally we give it alpha, beta or theta and 90 minus theta. The angle is 90 degree and it is asked to find the value of, very interesting case, sin A into cos B plus cosine A into sin B. What will be this product? How will you find this product? The options are option A 1, option B 1 by 2, option C minus 1 by 2, option D minus 1. Sin A cos B plus cos A sin B will be what? बहुत ही simple. Sin A means this side upon hypotenuse. Sin B मतलब this side upon hypotenuse. Cos A मतलब this side upon hypotenuse. Cos A and sin B equal है. Sin A and cos B equal है. Sin A and cos B equal है. Cos A and sin B equal है. बहुत सारे ways है आंसर बताने के. See here, very simple. See here, sin A is what? Opposite upon hypotenuse. And cos B was, that is adjacent. इसका opposite, इसका adjacent है. तो दोनों value equal है. Sin A and cos B. These two are equal. So their product will be, let us consider as a sin square A. Sin A into sin A. A भी sin A और A भी sin A actually. तो sin square A plus. अब cos A और sin B दोनों equal है. तो इन cos A मतलब है adjacent upon hypotenuse और sin B मतलब opposite upon hypotenuse. दोनों equal है रेशो. तो cos A और sin B उनको cos A कन्वर्ट करो तो ये cos square हो जाएंगे and sin square A plus cos square is 1. So our answer is 1. One way. See here, very interesting question. Trigonometry. Sin A cos B equal, cos A sin B are equal. Sin A converted into sin square. Sin A cos B is the sin square A. Cos A sin B will be cos square A and their addition is 1. So we got 1 as answer. Our answer is 1. दूसरा प्रकार, इसी को सॉल्व करते समय कैसे ले लेंगे? ये साइन है, हम क्या करेंगे? Let us give the sides opposite to A, the small a.
बी के सामने स्मॉल बी, किसी भी नाम से दो आप, अलग अलग नाम से, और ये साइड सी सपोज करो हाइपोटेनस, कंसिडर हाइपोटेनस सी. Sin A will be what? A upon C. Cos B will be what? A upon C. Sin A upon C, cos B is also A upon C. Plus cos A will be what? Cos A adjacent B upon C. Sin B will be what? B upon C. B upon C. So you are getting A square plus B square upon C square. A product plus. But what is value of A square plus B square? A square plus B square is C square. So it is C square upon C square is 1. Pythagoras theorem. So it is again 1. Anyway, the answer is 1. Sin A cos B plus cos A sin B. Depend on the basic trigonometry. Such a type of questions are asked on the 10th level of syllabus. The questions are not difficult. These questions are on the basic concepts. Today's question was taken from our source of question is what? It was not directly SPI. It was on the syllabus of SPI. The question was taken on very important exams all over India conducted on the syllabus of 10th. Toughest exams. Any doubt to anybody? किसी को कोई डाउट? Yes. बोलो. अक्षय. सर हाँ बोला. आप कल का वो हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? कल का वो सर आपने कहा था कि वो इनर रेडियस आउटर रेडियस 4 and 2 तो पेंट करना है, वो वाला क्वेश्चन. कल का. हाँ हाँ हाँ. हेलो सर. हाँ बोला. और अब आया समझ में? क्वेश्चन रिपीट करतो. सर ते आताच हाँ बोल. हाँ आताच सर बोल. पहिलं हाँ स्टेप रिपीट करा की. आताच्या क्वेश्चन सर आताच ते पहिलं स्टेप रिपीट करा की. See here, this हाँ. is a triangle. Okay. दिखता है ट्रायंगल. दिस इज अ ट्रायंगल. हाँ. और ए एंगल ये है और एंगल बी है. देखो एंगल कैसे दिए. तो हमने क्या सपोज किया, ए के सामने स्मॉल ए समझो, बी के सामने स्मॉल बी समझो, कुछ भी अलग वैल्यू एक्स वाई जेड भी लो, कोई बात नहीं है. सी, ये सी समझो. सर पहिल्यांदा साइन ए. हेलो सर. कॉस बी. हाँ बोला. यस यही सर क्वेश्चन ना. पहिल्यांदा सोडवलेला बघा. पहिल्यांदा तेच सर, पण पहिल्यांदा सोडवलेला बघा. हा क्वेश्चन नाही का? हा नको का ट्रिग्नोमेट्रीचा? हा सर. हाच ना. मग हेच त्याच पद्धतीने. बरोबर त्या पद्धतीने. या पद्धतीने नको का? साइड्स मेंशन न करना. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सियर साइन ए जो होता है वो कॉस बी के बराबर होता है. ये मेरा का एक्सप्लेनेशन था. साइन ए मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. देखो ये साइड को जब ये डिवाइड करेगा तो साइन ए मिलता है. और साइन ए का जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर होता है और कॉस ए का वैल्यू साइन बी के बराबर होता है. साइन ए का वैल्यू जो है वो साइन ए का जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर होता है और कॉस ए का वैल्यू साइन बी के बराबर होता है. देख लो ना कि साइन में अपोजिट साइड रहती है और कॉस में एडजेसेंट. ये साइन ए और कॉस बी इक्वल है, दोनों इक्वल है. तो दोनों में से किसी एक को डबल लिखो ना. साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि साइन बी है, साइन ए और कॉस बी इक्वल है. तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए. ऐसे लिखा था मैंने, ये साइन स्क्वायर प्लस. रुको सर मेरा हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन सर प्लीज. हाँ ये करता ना. कॉस ए इंटू साइन बी. सिर्फ क्वेश्चन रिपीट होगा अभी, थोड़ा बहुत जितना याद है अभी. कॉस ए इंटू साइन बी. कॉस ए और साइन बी भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए लिखेंगे. तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आंसर 1 आता है, इसलिए 1. ओके सर.
थैंक यू अभी सर। उल्टा आपको लगेगा फिर साइन ए की जगह कॉस बी, तो ये कॉस बी भी प्लस साइन स्क्वायर भी होगा, जैसा चाहिए वैसे हम कर सकते हो। हाँ हेमिस्फीयर में कैसा था, वो जो हेमिस्फीयर के, हाँ हाँ वो वेसल वाला क्वेश्चन था, वेसल वाला क्वेश्चन। यार सर उसका पेंट करने के लिए कहा था आपने। हाँ पेंट करना है तो पूरा पेंट करना पड़ता है ना, उसका डायग्राम हमने दिखाया था। उसके ऑप्शन कुछ भी हो, सिर्फ याद रखो क्या करना है। ये हमारा हेमिस्फेरिकल प्रॉब्लम था। यस, ऐसा बर्तन है, बर्तन हेमिस्फेरिकल होना चाहिए। ओके, हाँ सर। हेमिस्फेरिकल, तो इसको पूरा पेंट करना है जगह पूरा कंप्लीट। बर्तन को इमेजिन कीजिए, उसका जो फेस रहता है वो ऐसा रहता है, देखिए ये भीतर का ऊपर का फेस, तो इसको भी पेंट करना है ना हमको ऊपर से। मैंने ये यस बोला सर। था, अगर नहीं हम ये भूल जाते हैं, हम अंदर भी पेंट करते बाहर भी भूल जाते, और ये इसको कौन पेंट करेगा, ये तो सर्कुलर है, ये ऐसा आया गई बात, ये हम भूल जाते हैं। हाँ हाँ। तो उसका एरिया कैसे होगा, तो ये आउटर रेडियस के साथ एरिया माइनस इनर रेडियस के साथ एरिया, तो ये एरिया हो जाता है वो एरिया। उसमें थर्ड एरिया आपको ऐड करना है। पहला इनर रेडियस के साथ ये एरिया कर सरफेस 2/3 पाई आर स्क्वायर, बाहर का आउटर रेडियस के साथ 2/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों आर स्क्वायर अलग है, दोनों को ऐड करो, पूरा कंप्लीट हो अंदर बाहर से। ओके, सर हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते क्या? नहीं टोटल का क्या है, वो टोटल नहीं ना उसमें, टोटल कैसे, वन थोड़ी है, वन नहीं है ना वो, हेमिस्फेरिकल ओपन है। वेसल है, ओपन है। हाँ ये नहीं ना, उसमें आता नहीं ना ये एरिया। एक काम कर सकते हो, बाहर का टोटल सरफेस एरिया माया करो, और उसमें से अंदर का जो है ये सर्कल का एरिया माइनस करो, ऑटोमेटिकली आ जाता है, और बीच का सर्कल भी उसमें ऐड करो सिर्फ। बट ये अलग अलग लीजिए, और फिर तो सर मैं 0.05 वही से कह रहा था कि मल्टीप्लाई। टोटल सर। हाँ ये टोटल सरफेस एरिया किया ना, हाँ तो उसमें ये पूरा आया, पूरा ये भी आएगा, तो उसमें से ये चला जाएगा ना, ये पार्ट, ये ओपन है ना, ये ओपन है मतलब अंदर के रेडियस के साथ एरिया माइनस करो बस। हाँ। तो सर मैं ये टोटल बाहर का सरफेस एरिया, बाहर का टोटल, अंदर हाँ का मैं एक वही सोच रहा सर्कुलर, था सर। आपने दोनों टोटल सरफेस ऐड किए, फिर भी आपको दो ये सर्कल बीच के सर्कल माइनस करने पड़ेंगे, बट थिंकिंग सही है। हाँ एक क्वेश्चन हमारा एक लिस्ट में ओके अभी जो थैंक यू सर। उसमें एक क्वेश्चन था, एक हाँ थोड़ा स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन था। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, एक बीच में एक क्वेश्चन ले रहे, दो इट इज नॉट पार्ट सिलेबस। व्हाट इज द रिमाइंडर, नंबर थ्योरी से, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 raised to 256 इज, देखो हाँ क्वेश्चन बहुत सही है, डिविजिबल बाय 3 raised to 256 is divisible by 5, when 3 raised to 256 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, what is the remainder when what is the remainder when 2 raised to 56 is divisible by 5? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। 3 रेस टू 256 को 5 ने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आता है? पंकज कैसे, तेजस,
और एनी अदर आंसर? वन आंसर आया है, दोनों दो स्टूडेंट ने दिया है वन। 3^256 when divided by 5 the answer is 1। 2 भी आंसर आया है, ठीक है। वन वन आंसर है, वन। देखिए 3^256 डिवाइडेड बाय 5। हाँ हम एक्सप्लेन करेंगे ना, वन ही होगा। 3 को 5 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 3। 3 इंटू 3 के स्क्वायर। 9 को 5 डिवाइड करता है, देखो टेक्निक, देखो टेक्निक। 9 को जब 5 डिवाइड करता है 3 इंटू 3 तो रिमाइंडर आता है 4। 27 3 क्यूब जब 5 डिवाइड करता है 27 तो रिमाइंडर आता है 2। 5 5 आर 25। फिर 3^4 81 तो रिमाइंडर 81 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है 1। मैं ये नंबर लिखता हूँ 3 9 27 81। और यही सीक्वेंस बार बार बनती है फिर आगे 3^5 6 7 8 तक, फिर 3 4 2 8 हो गए, फिर से यही सीक्वेंस बनेगी। मैं आपको फिर से बताता हूँ। 3 को डिवाइड किया रिमाइंडर 3, स्क्वायर को डिवाइड किया 3 स्क्वायर को रिमाइंडर 4, 3 क्यूब को डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 3^4 किया रिमाइंडर 1। ये ऐसे जाइए। 3^5 को डिवाइड करो रिमाइंडर 3, 3^6 को रिमाइंडर डिवाइड करो रिमाइंडर 4, 7 को डिवाइड करो रिमाइंडर 2, 3^8 को डिवाइड करो रिमाइंडर 1, 3^8। फिर से जाएंगे 3^8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है। फिर 3^9 को डिवाइड करो रिमाइंडर 3, 3^10 को डिवाइड करो रिमाइंडर 4, 3^11 रिमाइंडर 2 और 3^12 रिमाइंडर फिर से 1। मतलब 4 के जितने मल्टीपल से 3 के पावर उसका रिमाइंडर 1 है। तो 256 ये 4 का मल्टीपल है। देखो 256 3^256 इज अ 4 के मल्टीपल में आता है, इसलिए रिमाइंडर 1। बस यही टेक्निक है। अब 3^4 के बाद अगर 3^5 आता है मतलब उसमें एक मल्टीपल बढ़ गया है, तो रिमाइंडर फिर से 3 4 2 1 ऐसे जाना है। अब बोलेंगे 3^4 डिवाइड करो, जो बचता है वो दूसरा नंबर होगा तो 3^57 है, 257। तो 3^256 इंटू 3^1। तो यहां तक कंप्लीट होती है ना 4 के टेबल्स वाली सब। तो ये रिमाइंडर 1 है और ये रिमाइंडर कितना है 3। तो इसमें जाइए उसका रिमाइंडर दिखाइए, उसका रिमाइंडर 1 आने के बाद ये पॉसिबल होता है। 1 आने के बाद ये बहुत बड़ा डिस्कशन वाला पार्ट है ये, इसके ऊपर एक अलग लेक्चर लेना होगा। बट कभी भी ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा नजदीक वाले नंबर के बारे में सोचो ऐसा, और उससे जाइए उससे कंसेप्ट नहीं होगा आपके पास तो भी कंसेप्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, कंसेप्ट आप खुद बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन लो, कुछ कंसेप्ट बनाओ खुद के, वो ब्रेन में आप कुछ लॉजिकल डेवलपमेंट होगा, वो आपको काम आएगा। चलो सर टाइमिंग कितना है? टाइमिंग एक्सप्लेन। सर अभी कोई टाइमर तो आया नहीं है। 3^256, 3^1 को 3, 3 स्क्वायर को 4। हाँ बोलिए सर कितना? टाइमर कोई आया नहीं सर अभी। ओके ओके, अभी एंड करेंगे ना, बहुत देर से और चल रहा है। कितना हुआ टाइमिंग? टू 1 को 3 4 2 1। अब 3 पावर वाले कम, जो 1 आता है रिमाइंडर 1 आने के बाद, ये 1 के लिए है।
बाकी रिमाइंडर के लिए ये अलग टेक्निक है, वो और टेक्निक हम बाद में देखेंगे। ये 1 रिमाइंडर आया तो फिर से आपको आगे जाना है, नेक्स्ट 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 आगे जाना है। फिर 3 4 2 1 3 4 2 1 4 4 में हो जाएंगे, 4 4 के ग्रुप हो जाएंगे। आपका नंबर 3 कौन से ग्रुप में बैठता है, वही रहेगा 5 ने डिवाइड करने के बाद। अब दूसरा नंबर लो, 4 ने डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 7 ने डिवाइड करने के बाद क्या आता है, ये तो आपको डिसाइड करना है। 5 ने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आते 1 2 3 4। 6 ने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आते 1 2 4 5। 7 ने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आते 1 2 3 4 5 6। ये भी याद रखो। हाँ हो जाएगा, वो भी रिपीट होगा कुछ क्वेश्चन के साथ, ये सब कंबाइंड रिपीट होगा एक सेशन में। और कुछ? ओके, आज हम यही रुकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। इस तरह का अलग प्रॉब्लम होगा और उससे ये प्रॉब्लम डिस्कस होगा और अलग प्रॉब्लम, जो कुछ हमने ऐसे बनाए ऐसे ऐसे। कैसे लगा आपको लेक्चर? व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम थे? आपके पास कुछ मटेरियल होगा तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, या कुछ प्रॉब्लम सर को भेजो, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे जरूर। ट्राई करेंगे, बताएंगे मतलब ट्राई करेंगे। यस यस, सही। हाँ ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत सही। 4 5 ही क्वेश्चन हो गए। नहीं अभी चल रहा है, हो जाएगा अभी। एक क्वेश्चन देते लॉजिकल, हमने दिया था आपको अभी। वॉकिंग फ्रॉम होम, वॉकिंग फ्रॉम होम टू बैंक, घर से बैंक तक जाने के लिए एट अ स्पीड ऑफ स्पीड देखो 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड से गए घर से बैंक तक 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये चलने का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। एट मिनट्स लेट, 5 किलोमीटर पर आवर से गए तो 8 मिनट्स लेट, द पर्सन इज 8 मिनट लेट। नेक्स्ट, अगर स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर तो 8 मिनट, अब 8 किलोमीटर पर आवर तो 5 मिनट लेट। देखो हाँ क्वेश्चन, वॉकिंग फ्रॉम बैंक टू होम और या होम टू बैंक, स्पीड जब 5 किलोमीटर पर आवर होगा तो 8 मिनट लेट होते हैं, और 8 किलोमीटर पर आवर तो 5 मिनट लेट है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड द बैंक? इट इज आवर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड आवर बैंक? तो उसका ऑप्शन है 2 किलोमीटर, डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है। 2 किलोमीटर, 2 by 3 किलोमीटर,
1/3 kilometer and 1/2 kilometer. These are the 4 options. Half, 2 kilometer, 2/3 and 1/3. किसी भी एक जगह से दूसरे जगह समय 5 किलोमीटर पर आवर से गए तो 8 मिनट लेट होते हैं और 8 किलोमीटर पर आवर से गए तो 5 मिनट लेट होते हैं. देखो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, तो लेट टाइमिंग है 8 मिनट. लेट होते हैं यूजुअल टाइमिंग से, और 8 किलोमीटर पर आवर से 5 मिनट लेट होते हैं. लेट है लेट, एक्चुअल टाइम तो किसी ने दिया नहीं. तो आपको डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा है, नो टाइमिंग, डायरेक्ट डिस्टेंस. 1, 2, 1/2, 2/3, 1/3, 4 ऑप्शन है. वाह, रविश where are you from? Ravish, हेलो रविश, कैसे सॉल्व किया? सर गलती से हेलो? दब गए. गलती से 2/3? ऐसे थोड़ी होता है. फिर कौन सा आंसर है? सर पता नहीं. नहीं, कुछ ट्राई कर सकते हो. हाँ सर. कैसे? सर एक्चुअल टाइम एक्स पकड़ेंगे. एक्चुअल टाइमिंग एक्स पकड़ेंगे, बराबर है. ठीक है, चलो आगे. तो फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो फिर एक्स माइनस 8. कैसे जाओगे आगे? आप कुछ भी पकड़ो तो भी जा सकते हो, जरूरी नहीं है. कुछ भी शुरू करो, किसी भी तरह से जाओ. आप टाइम कंसीडर करो या डिस्टेंस कंसीडर करो, यू विल गेट योर आंसर. अगर आप टाइम कंसीडर कर रहे हैं, एक्स आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूं अभी, आपके लिए है. आपने जो टाइम कंसीडर किया एक्स, तो ये टाइम होगा x-8 और ये बाई टाइम होगा x-5. दोनों के टाइमिंग मिल गए. अब डिस्टेंस कितना होगा? x × 5. नहीं, इसका टाइमिंग है x-8. ओरिजिनल टाइमिंग x है. यस सर. x-8 × 5 will be the distance and x-5 × 8 will be the distance. सर दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे. तो देखो ना, चेक करो ना. अगर आप x आवर टाइमिंग कंसीडर करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस होगा 5x किलोमीटर. 5x नहीं, आपका ये स्पीड बदल जाएगा, टाइमिंग बदल जाता है. x-8 नहीं, इसमें गलती होती है. x-8 और x-5 रॉन्ग है. फिर से देखो. नहीं, 2/3 आंसर है. आंसर 2/3 है. ये 8 मिनट्स है, 8 मिनट्स. तो 8/60. 5 मिनट्स है. तो अभी ये टाइमिंग आपका, अगर ओरिजिनल टाइमिंग x है, ओरिजिनल टाइमिंग
X. x है, तो नया टाइमिंग होगा ये 5 किलोमीटर पर आवर के लिए, उसका टाइमिंग 8 मिनट से लेट, 8 मिनट लेट होगा, मतलब टाइम बढ़ेगा या कम होगा? टाइम इंक्रीज और डिक्रीज, 8 मिनट लेट मतलब बढ़ जाएगा, तो x प्लस 8 नहीं 8/60 होगा, 8/60 मिनट में उसको आवर में कन्वर्ट करना है, और ये टाइमिंग जो है 5 मिनट लेट, यानी x प्लस 5/60। अब स्पीड इनटू टाइम एंड स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस है इक्वल कर लो, x मिलेगा और x से आप आगे की बातें कर सकते हो। देखो ऐसा भी कुछ हो, आपके लॉजिक से हमने थोड़ा आपको हिंट दिया। देखो कुछ मिलेगा इससे, अगर आप ऐसा करते हो तो। वेदर योर लॉजिक सही है गलत है देख लो, अगर आप ऐसे करते हो, ओरिजिनल टाइमिंग को आप एक्स कंसिडर करते हो। अरे दो टाइमिंग में 8 मिनट का 3 मिनट का डिफरेंस है, ये कंसिडर कर लो। दोनों टाइमिंग में 8 मिनट 3 मिनट का डिफरेंस है, 8 मिनट है और ये 5 मिनट है, ये लॉजिक कंसिडर करो। दोनों के टाइमिंग में 3 मिनट का डिफरेंस है, इसका एक टाइमिंग होगा उसका टाइमिंग होगा, तो आप जाओगे डिस्टेंस तक, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइमिंग का सब कोई सवाल ही नहीं है। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस सपोज करेंगे d, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, d किलोमीटर इज द डिस्टेंस। देखो कभी कभी ऐसे जाना है फ्रैक्शन से, डिस्टेंस इज d किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, d अपॉन s इज t। तो जब 5 किलोमीटर का स्पीड होगा, 5 किलोमीटर का स्पीड, तो d अपॉन 5, ओरिजिनल डिस्टेंस तो कम नहीं हुआ है, तो टाइम आया t, ये कुछ टाइम आया t1, d अपॉन 5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। दूसरा जब 8 का है तो d अपॉन 8, यह है दूसरा टाइमिंग t2। अब इससे लॉजिक, दोनों टाइमिंग में 3 मिनट का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइमिंग इज 3 मिनट, 3 मिनट डिफरेंस है, ये 8 मिनट लेट है, ये 5 मिनट लेट है, तो ये टाइमिंग ज्यादा है ये टाइमिंग कम है, दिस माइनस दिस इज 3, सिंपल बात है। तो d अपॉन 5 माइनस d अपॉन 8 विल बी 3/60 आवर्स मिनट में। देखो इससे डिस्टेंस मिलता है नहीं, 8d माइनस 5d 3d, 3d upon 40 will be 3/60. So d will be 40/60. That is 2/3 is our answer. Check your knowledge, check your understanding. आज हम यही रुकते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, पहला डिस्टेंस अपॉन 5 t1 मिनट में, दूसरा डिस्टेंस अपॉन 8 t2 मिनट में, 3 मिनट, डिफरेंस दोनों में 3 है, d अपॉन 5 इज ग्रेटर देन d अपॉन 8। अरे 5 किलोमीटर पर आवर गए तो 8 मिनट लेट जाओगे, और 8 किलोमीटर पर आवर गए तो 5 मिनट लेट जाओगे, मतलब पहले से 5 मिनट जल्दी जाओगे, तो 3 मिनट का डिफरेंस है।
ये पहला टाइमिंग इससे 3 मिनट ज्यादा है, ये क्वेश्चन है अपना, ऐसे हमने एक्सप्लेन किया है इसको। पीछे का पार्ट देखिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। सर अब एंड करते हैं सर। ओके, किसी को डाउट है अभी आज? थैंक यू। ओके सर, ओके ओके, लास्ट तो बस खत्म हुआ। 2 minutes actually. There is last 2 minutes ठीक है ठीक है actually. ठीक है ठीक है, बच्चों को डाउट नहीं, उनको ही बताया मैंने। ये जो 8 मिनट टाइमिंग है और ये टाइमिंग है 5 मिनट, तो T1 जो है 8 मिनट लेट है ओरिजिनल टाइमिंग से, और ये 3 मिनट लेट है, मतलब ये टाइमिंग 3 मिनट से इससे ज्यादा है, यही हमने बताया। बस दोनों का डिफरेंस है 3 मिनट, यानी आवर्स में हुआ 3/60 hours. This is the logic. Try to understand these words. Thank you very much. फिर से लिखता हूँ, 1 मिनट है तो। पहला टाइमिंग जो है वो D/5, ये पहला टाइमिंग है T1। दूसरा टाइमिंग है D/8 T2। ये 8 मिनट लेट है और ये 5 मिनट लेट है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 3 मिनट्स है। ऐसे जाइए तो ये टाइमिंग ज्यादा है, ये टाइमिंग कम है, लेट जाता मतलब टाइमिंग ज्यादा है। तो D/5 माइनस D/8 इज 3 मिनट। 3 मिनट मतलब 3/60 आवर्स। 3/60 आवर्स मत लगाओ, ये D आपको मिल जाएगा कैलकुलेशन से। 5 और 8 का एलसीएम 40 है, 8D माइनस 5D, 40 उधर मल्टीप्लाई हो जाए, 3D इक्वल्स टू 3/60 इंटू 40, 40/60 दोनों साइड से 3 जाएंगे, 2/3 किलोमीटर इज आवर आंसर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलेंगे।